So, a very warm welcome to all the participants on this demo class on learning of Spanish language. My name is Dr. Ruchi Mishra Tiwari, and I am the head of the School of Languages, Rabindranath Tagore University, Bhopal. And this course on learning of the basics of Spanish language has been organized by Rabindranath Tagore University, Bhopal. And we have the expert madam who has also joined. But before we start the session and before we start the demo class, first of all, apologies for the delay. We are already 4 minutes late. Secondly, an important thing is that all the students or all the participants who have joined this session, please listen attentively. And we are going to, in this session, we are going to tell us something very basics of the Spanish language. Spanish language की basic बातें और Spanish language की थोड़ी history, स्पेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी जाएगी. बाइलिंगुअल है ये सेशन और इवन जो क्लासेस रहेंगी वो भी बाइलिंगुअल रहेंगी. इस सेशन के बाद, इस सेशन को अटेंड करने के बाद जो भी स्पेनिश कोर्स सीखना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे. आप मुझे मैसेज कर देंगे या आपके पास जिस फोन नंबर से फोन आए उस पर भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं. तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड होंगे सो यू विल कांटेक्ट मी और फिर हम आपको रजिस्टर करके आपको एडमिशन देंगे प्रॉपर. ये पूरा कोर्स ऑनलाइन कोर्स रहेगा, 2 days in a week ऑनलाइन कोर्स रहेगा और एग्जाम भी ऑनलाइन रहेगा, सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन दी जाएगी. इसमें कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स इज बीइंग ऑर्गेनाइज ताकि आप घर बैठे एक फॉरेन लैंग्वेज सीख सकें कहीं से भी. So before any delay, I will hand over and I will just share a brief profile. The expert of the session here, the trainer, is Chelsea Gurumayom Madam, and she knows English, Hindi, and Spanish language. And she has done her training from the embassy directly, and she has been teaching offline and online Spanish language since many years, and she is very good at it. Or it's really our privilege and honor that we have such an expert faculty like Chelsea Madam with us. So we welcome you, Chelsea Madam. Welcome you to this webinar and welcome you to this session. And I hope all the participants will gain a lot today. So over to you, Chelsea ma'am. Thank you very much, Dr. Mishra. I'm very much honored to be here as well as a part of Rabindranath Tagore University of Bhopal. And so I would like to give a brief introduction of myself. My name is Chelsea Gurumayum. I belong to Manipur, but I have been living in Delhi for the past 10 years. So like Ruchi ma'am said, I learned the language Spanish from directly from the institute, official institute of the Embassy of Spain here in Delhi. And I have been teaching, yes, offline classes I've been giving and online classes as well because the pandemic started and then this became our new normal, no? तो आज शुरू करने से पहले कुछ स्पेन के बारे में आप सबको थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ. स्पेन के बारे में जैसे मेनली स्पेनिश लैंग्वेज के बारे में. तो स्पेनिश लैंग्वेज है जो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि सबको दिखाई पड़े. हाँ, तो स्पेन जैसे उन लोग के भाषा में स्पेनिश लैंग्वेज में एस्पानिया बोलते हैं. तो मैंने जैसे लिखा है स्पानिया. तो स्पेन का बहुत लंबा हिस्ट्री है. ये फ्लैग है स्पेन का, ऐसे है, ला बांडेरा दे एस्पानिया, द फ्लैग ऑफ स्पेन. ये है स्पेन का फ्लैग. और ये स्पेन का छोटा सा मैप है, एल मापा दे एस्पानिया. आपको दिख रहा है फ्रांस है, ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन आ गया यहाँ पे पूरा. और ये अफ्रीका का है, मोरक्को, अल्जीरिया. हाँ, तो
दिखाई पड़ रहा है कि स्पेन में बहुत सारे बीचेस है, कोस्ट, पूरा कोस्ट लाइन एरिया है स्पेन का, तो बहुत सी सुंदर जगह है जिसे आपने यहाँ पे देखा है। हाँ, ये बार्सिलोना सिटी है स्पेन का, उसका एक जगह है। यहाँ पे जो स्टेचू दिखाई पड़ रही है, कोलंबस का स्टेचू है। तो कोलंबस को ऑनर करके ये स्टेचू बनाया गया है बार्सिलोना में। बहुत सारे, बहुत बहुत ही सुंदर जगह है ये, एकदम बीच के पास में ही है। तो आप स्पेनिश लैंग्वेज में आते हैं। स्पेनिश लैंग्वेज जो है स्पेन में तो ऑब्वियसली बोला जाता है, स्पेन का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अलग तरह के डायलैक्ट्स है स्पेन में। ये पूरा ये इसमें बोला जाता है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, वो लोग का नेटिव लैंग्वेज। और फिर el idioma español en el mundo, the Spanish language in the world। तो एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे बोला जाता है? स्पेन आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी आ गया, मेक्सिको, ये पूरा सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, पूरा ये इसमें बोला जाता है स्पेनिश। जो एक्सेप्ट ये बड़ा सा जो मैप है, ये ब्राजील है, ब्राजील में पोर्चुगीज बोला जाता है। तो ये सब कंट्रीज में स्पेनिश कैसे लोग बोलते हैं? स्पेन जो ये इतने सारे कंट्रीज को कॉलोनाइज किया था इन द 14-15 सेंचुरी से, ये सारे कंट्रीज को कॉलोनाइज करके स्पेनिश लैंग्वेज का कल्चर, लैंग्वेज, ये सब इन्फ्लुएंस आके इन सब में मोर देन 500 ईयर्स का कॉलोनाइजेशन था इन सब एरियाज में। तो फिर ऐसे लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे कि इंडिया में हम लोग इंग्लिश बोला जाता है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, हम लोग हिंदी भी बोलते हैं, अपने अपने डायलैक्ट्स है, लैंग्वेज है। जैसे मैं मणिपुर की हूँ तो मणिपुरी बोलती हूँ। तो जैसे, लेकिन हम सब इंग्लिश भी बोलते हैं एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, हम लिंगुआ फ्रैंका जैसे इंग्लिश यूज करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम लोग को कॉलोनाइज किया था। तो उसी तरह स्पेन ने भी बहुत सारे कंट्रीज को कॉलोनाइज किया था। तो इस सारे कंट्रीज में एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है। तो ये सारे जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है ये सब कंट्रीज में। और ये इक्वेटोरियल गिनी है, दिस इज द ओनली कंट्री इन अफ्रीका where they have Spanish as an official language। तो ये छोटा सा एरिया ये यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और पूरे वर्ल्ड में अब स्पेनिश लैंग्वेज जो बहुत सारे लोग सीखने लग गए हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अब लोग। जैसे देखो आप, इंडिया यहाँ पे दिख रहा है, पूरा यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारे स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं। जैसे यूएस में बहुत सारे लैटिन अमेरिकन जो हिस्पैनिक पॉपुलेशन है, बहुत सारे हैं यूएस में। तो मैक्सिकन्स हो गया, कोलम्बियंस हो गया, अलग अलग कंट्रीज जैसे यहाँ से जो आते हैं, ये इसमें पूरा यूएस बहुत स्पेनिश लोग बोलने वाले बहुत है। और फिर जैसे ब्राजील है, पोर्चुगीज ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन स्पेनिश बोलने वाले लोग बहुत है, क्योंकि ऑब्वियसली स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज में सराउंडेड है। और फिर ये रशिया, ये सब कुछ आ गया, सारे यूरोपियन कंट्रीज, मोरक्को, अल्जीरिया, ऑब्वियसली बिकॉज स्पेन से बहुत पास में है, तो यहाँ से भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स जाते हैं स्पेन। तो इन सब कंट्रीज में बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, फिलीपींस भी कॉलोनाइज किया था स्पेन में, तो फिर उनका जो Ma'am, there is network issue. Chelsea, ma'am. I think there is some network problem. Yes, there was a network issue, Chelsea, ma'am. We didn't hear your voice. अच्छा हाँ, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा Fine, ठीक। fine. पता नहीं कब तक सुनाई। No, no, now it's okay. You continue. Please continue. ओके, तो I'll go back to sharing my screen। Yes, please.
हाँ, तो मैं बोल रही थी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पेनिश इज बिकमिंग अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो बहुत सारे लोग स्पेनिश स्पीकिंग लोग अभी आ रहा है, बहुत सारे सीख रहे हैं। तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। तो आप स्पेनिश क्यों सीखे? क्यों क्यों किसी को अगर लैंग्वेज सीखने के लिए बोले तो स्पेनिश क्यों चूज करे? बहुत सारे लैंग्वेजेस है, फ्रेंच है, स्पेनिश, अलग अलग, इटालियन, पोर्चुगीज, अरबिक, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, इवन चाइनीज, जापानीज आजकल तो बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, कोरियन, ये सब। तो स्पेनिश क्यों सीखे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन माय ओपिनियन, मुझे लगता है कि ये जो स्पेनिश भाषा है बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। इट्स अ वेरी रोमांटिक एंड वेरी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। वो लोग के जो बोलने के तरीके होते हैं, एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जो वो लोग जैसे बोलते हैं। हर बात में जैसे थैंक यू बोलना, जैसे थैंक यू स्पेनिश में बोलते हैं ग्रासियास, तो हर बात में जैसे बोलते हैं ग्रासियास ग्रासियास। और बोलने के जो तरीके होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो इट्स अ वेरी फन लैंग्वेज, एंड ऑब्वियसली लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज वेरी फन। और एक इट्स अ वेरी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक मेन चीज में आते हैं हम क्यों स्पेनिश को सीखे। तो एल टूरिज्मो, द टूरिज्म इंडस्ट्री है ना। तो आजकल तो अभी तो पैंडेमिक आ गया, लेकिन पैंडेमिक के पहले आजकल जैसे द टूरिज्म इंडस्ट्री वाज बूमिंग। Everybody was flying around to all the corners of the world, traveling the entire Latin American countries, they speak Spanish, है ना। और स्पेन में भी स्पेनिश बोलते हैं। तो आप जैसे अगर आपको जैसे हिस्पानो पार्लांटे इसको बोलते हैं स्पेनिश में, स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज, तो इन सब में इंटरेस्ट है। देयर आर सो मेनी कंट्रीज, जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले मैप में। ये स्पेन को जाने के लिए आपको बहुत इंटरेस्ट है, स्पेन जाने के लिए। तो टूरिज्म जो है, इसके वजह से अगर लैंग्वेज को अगर जान के एक जगह पे चले, तो एक कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए एकदम आप खुद को इमर्स हो जाओगे कल्चर में। हाँ, बिना स्पेनिश बोले आप जा सकते हो, हाँ, इंग्लिश तो हर जगह चलता ही है, तो जा सकते हो, हाँ। लेकिन जैसे एक लैंग्वेज को जान के चलो, तो तब डिफरेंस होता है ना आपका एक्सपीरियंस में। तो एकदम कल्चर में जैसे लोकल पीपल के साथ आप बात कर सकते हो। जैसे स्पेन में तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो आप अगर वहाँ पे जाओगे तो हर साइन बोर्ड्स, दुकानें के जो नाम, हर चीज, जैसे रास्ते में सब कुछ स्पेनिश में ही लिखा लिखा होगा। और इवन इन द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो फिर इसलिए एक तो टूरिज्म के वजह से, अगर आपको if you like traveling, if you like exploring new places, if you uh, if you want to experience the culture of a place in a true way, एकदम सही वे में अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहो, तो ऑफ कोर्स उसके लिए भी उसके इंटरेस्ट की वजह से भी लोग एक लैंग्वेज को सीखने के लिए कोशिश करते। और एक तो जैसे कल्चर, अभी जैसे कल्चर जो है, बहुत सारे पॉप कल्चर में स्पेनिश लैंग्वेज का जो सॉन्ग्स आ गया है। एक तो डेस्पासीतो, सबको एकदम डेस्पासीतो का एकदम वेव आया था, सबको पता था डेस्पासीतो क्या है, डेस्पासीतो डेस्पासीतो। There are technical issues. I apologize for the technical problems, but ma'am will continue soon.
I think there are technical issues. I'm contacting the expert. Meanwhile, before she connects, um, let me just tell you all that those who are interested in doing the course, it is going to be 2 days in a week that we will be deciding as per the convenience of the teacher as well as the students. Either it will be Tuesday or Saturdays or Wednesday or Saturdays, 2 days in a week, mostly in the second half after 2 p.m. And it's going to be online, 40 to 45 minutes or maximum 1 hour on Google Meet. And of course, we will form a WhatsApp group of all the students who are taking admission in that course. And in that WhatsApp group, we will be sending the links for the classes, as well as we will be sending the study material, the YouTube videos, whatever the teacher is sharing. Assignments, tests will also be taken in between. But ultimately, after at the end of 6 months, there will be a final exam, oral as well as written, both oral and written. And based on your performance, certificate will be given to you of the beginners. This is the beginners level course, the first beginners level course. And it is called A1. It is called the A1 level. And the teacher will be with you for 45 to 50 minutes, 2 times in a week. And the fees has already been told you. If it is not, the fees is actually 4,000 rupees for 6 months. For the whole 6 months that you will be doing the course, including your examination, including the books and the material that will be available to you, the whole fees is of 4,000 rupees. Yes, Chelsea ma'am. I think there is Hi. some problem with the network at your end. Is it? Yes, there was some problem, but sorry for that. But now I'm back. Okay, So yeah. So let's please continue. Yes, yes. yes, let's get back. हाँ तो मैं बोल रही थी कि because of tourism a lot of people learn languages because they want to experience the culture of a different place in its true sense, in its true way, you know, completely immerse themselves in the culture. तो एक हो गया el turismo, the tourism के वजह से language सीखो. Now why learn Spanish out of all the languages that are there, foreign languages, in India, specifically in India? So now let's come to jobs में of course अगर आप एक नया लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपके जैसे जॉब में, प्रमोशंस में कैसे आपके करियर को आगे लेके जाए, विद दिस पर्सपेक्टिव बहुत लोग नया लैंग्वेज को सीखते हैं, हॉबी के लिए भी सीखते हैं, लेकिन मेनली तो बहुत सारे लोग जॉब के लिए भी सीखते, जैसे सीखने की कोशिश करते. तो फिर क्यों व्हाई लर्न स्पेनिश आउट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस? तो जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे यूएस में इट इज अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, बहुत सारे हिस्पैनिक पॉपुलेशन है स्पेनिश में, एक बहुत बड़ा हिस्पैनिक पॉपुलेशन. तो फिर वहाँ पे बहुत सारे जॉब्स है, जो वहाँ के जॉब मार्केट है, जैसे यहाँ पे एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में ऑफिसेस है, यूएस के जो ऑफिसेस है, तो उसमें काम करने के लिए वहाँ उसमें आ गया जैसे स्पेनिश लैंग्वेज स्पेशलिस्ट आ गया, मल्टीनेशनल कंपनीज में, इवन कॉल सेंटर्स. वहाँ पे अगर आप एक लैंग्वेज इंग्लिश के बाहर या हिंदी इंग्लिश के बाहर और एक और लैंग्वेज को जानते हो जैसे स्पेनिश, तो फिर यूएस के जो मार्केट होता है उस पर आप काम कर सकते हो. वहाँ पे मेनली ये जो कॉल सेंटर वाला, ये आप अगर लेवल जैसे B1 ऐसा हो गया तो आप यू कैन ट्राई फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब्स. एक तो वो हो गया. एक तो मेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री होता है जो इंडिया का, जैसे इंडिया के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेशली क्लोथ्स, ज्वेलरी, स्पेन में बहुत जाते हैं, बहुत जाए मैंने देखा है वहाँ पे. जब मैं स्पेन गई थी तो बहुत सारे उनके जो क्लोथ है वो मेड इन इंडिया लिखा होता है उसमें. तो जैसे यहाँ के इंडिया के जो कॉटन होता है वो अच्छा होता है, तो ये वहाँ पे यूज होता है. तो स्पेन के बाहर भी जैसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी जाता है. वहाँ पे इंडिया के जो ट्रेडिशनल स्टाइल है वो लोग को, बाहर के लोग को बहुत पसंद है. तो इंडिया का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री है, और इंपोर्ट भी आते हैं जैसे बाहर से, जो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज से जो प्रोडक्ट्स आते हैं. तो एक जो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आप एज अ लैंग्वेज स्पेशलिस्ट काम कर सकते हैं, ये काम भी है. एंड उसके अलावा क्या है, आप
एम्बेसीज में काम कर सकते हो आप। जैसे अगर स्पेनिश अगर आपने सीखा तो सिर्फ स्पेनिश एम्बेसी में नहीं, इतने सारे जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उसके एम्बेसीज में भी आप काम कर सकते हो। जैसे पेरू हो गया, चिले हो गया, मेक्सिको हो गया, कोलंबिया हो गया, इतने सारे कंट्रीज है, होंडुरास, ये सब, इसमें बहुत सारे जो एम्बेसीज होते हैं इन सब कंट्रीज के इंडिया में, उसमें भी आप काम कर सकते हो। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब्स निकल के आते हैं वहाँ पे, तो 1 साल का 2 साल का उसमें भी काम कर सकते हो। एक आप टीचिंग में, जैसे मैं करती हूँ टीचिंग में, टीचिंग फील्ड में आप जा सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग सीखने लग गए। एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, जैसे सेल्स में, फ्लाइट्स में, उसमें, या टूर गाइड बन सकते हो आप, या फिर टूर्स को जैसे प्लान कैसे करते हैं, तो ये सब जब स्पेनिश स्पीकिंग लोग इंडिया विजिट करने आता है तब उसमें बहुत सारे जॉब्स, देयर आर डिफरेंट जॉब्स आउट देयर। और लास्टली ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, ये सब में भी काम कर सकते हो। ग्लोबल कॉरपोरेशन में ट्रांसलेटर्स और इंटरप्रेटर्स का अब बहुत सारे डिमांड है। तो ये सब हो गया। आप ग्रासियस ग्रासियस, थैंक यू। तो आप सीखने वाले, लेट्स स्टार्ट द लर्निंग सेशन नाउ। मैं आप लोग को एक ब्रीफ स्पेनिश लैंग्वेज को के साथ लेके जाती हूँ। Bienvenido a la clase de español. Welcome to the Spanish class. तो मैं आप सबको फिर से वेलकम कर रही हूँ। Bienvenido, जैसे स्पेनिश में बोलते हैं, Bienvenido a la clase de español. अब la conversación, आप जब स्पेनिश भाषा को आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि स्पेनिश में हर वावल को प्रोनाउंस करते हैं। जैसे आ, ओ, ई, जैसे ये सब आ गया, तो ला कॉन्वर्सासियोन, एकदम हर चीज को, जैसे सियोन को भी CION आ गया, इंग्लिश में तो ऐसे बोलेंगे, तो फिर सी ऑन, तो हर वावल को प्रोनाउंस करना है। तो दैट मेक्स स्पेनिश लिटिल बिट इजियर देन मे बी फ्रेंच, बिकॉज फ्रेंच लोग तो जैसे वर्ड्स को दे ईट अप द वर्ड्स, दे डोंट pronounce each and every vowel. तो मे बी स्पेनिश इज अ लिटिल बिट इजियर एज वेल सीखने के लिए, है ना। तो अब आ गया los saludos, ग्रीटिंग्स। स्पेनिश में कैसे ग्रीट करते हैं किसी को, तो आप लोग ने भी बहुत लोग ने भी सुना होगा, जैसे ओला ओला, आजकल तो बहुत लोग भी बोलते हैं, है ना। डेस्पासितो के बाद जैसे मनी हाइस्ट आ गया सीरीज, नेटफ्लिक्स सीरीज, ये सब के बाद लोगों को थोड़ा थोड़ा स्पेनिश के भाषा का जो थोड़ा सा आइडिया तो आ गया। ओला, ये हाय, ओला मीन्स हाय, ओला ओला ओला, है ना। बुएनोस दियास, गुड मॉर्निंग, बुएनोस दियास, buenos días. Buenas tardes, good afternoon. Buenas noches, good evening या good night. तो अब यहाँ पे फर्स्ट चीज आपने नोटिस किया होगा, ये जो साइन है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये दोनों साइड जाता है। इंग्लिश में तो सिर्फ एक साइड में जाता है, हाई एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। स्पेनिश में दोनों साइड यूज करना होता है। रीजन तो पता नहीं, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज, अपना रूल है, डिफरेंट अलग अलग रूल्स होते हैं अलग अलग लैंग्वेज का, तो फिर ऐसे ही यूज करते हैं। अगर आप कोई चीज एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ बोल रहे हो विद एन एक्सक्लेमेशन, तो फिर दोनों तरह आपको यूज करना है, जैसे एक इन्वर्टेड और एक नॉर्मल वे। ओला, बुएनोस दियास, अभी जैसे 2:30 हो गया है ना, तो बुएनास टार्डेस, गुड आफ्टरनून। और इवनिंग हो या गुड नाइट बोल रहे हो तो फिर बुएनास नोचेस। अब आता है बेसिक कॉन्वर्सेशन कैसे करते हैं किसी के साथ स्पेनिश में। ये तो मैंने वेरी बेसिक वे में बनाया है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ डेमो क्लास। प्रॉपर क्लास में अल्फाबेट से शुरू होके, लेटर से शुरू होके अच्छे से वो करना है, क्योंकि यू हैव टू नो हाउ ईच एंड एवरी लेटर इज प्रोनाउंस्ड इन स्पेनिश। तो अभी के लिए सिर्फ बेसिक जो कन्वर्सेशन कैसे करना है वो देखते हैं कैसे करते हैं। अब मैं किसी को बोलूं, ओला cómo estás, ओला cómo estás, cómo estás, ये cómo estás, how are you, cómo estás का मतलब आप कैसे हो, है ना। cómo estás, cómo estás,
estoy bien, estoy bien, estoy bien, I'm good. और estoy bien, estoy को छोड़ के भी सिर्फ ठीक हूँ ऐसे बोल सकते हैं, bien, bien. जैसे हर वावल को प्रोनाउंस कर सकते हैं, करना है स्पेनिश में, जैसे मैंने बोला था, तो bien या bean, बेन ऐसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हर वावल को प्रोनाउंस कर सकता है. ये आई जो है स्पेनिश में ई है, और ये ई जो है ए है, ए ऐसे करके प्रोनाउंस करता है. तो फिर ये bien, bien, estoy bien, or bien, muy bien, muy is very good, so muy, very, bien, good, muy bien, estoy muy bien, I am very good, or muy mal, I'm very bad. तो ऐसे आप बोल सकते हो, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? ¿Y tú? ये जो y जो है स्पेनिश में e है, and this means n. जैसे मैं बोलूंगी हिंदी में, जैसे आप कैसे हो? ठीक हूँ. और तुम या और आप ऐसे बोलते हैं ना, तो फिर और आप और तुम, ये जो इतू. और जैसे अब मैंने ये सारे कॉन्वर्सेशन जो है तुम के हिसाब से बनाया है, क्योंकि दैट्स द मेन वे स्पेन में भी जो यूज करते हैं. लेकिन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आप यूज करके ज्यादा बात करते हैं, आप ऐसे करके. जैसे हिंदी में हम लोग यूज करते हैं आप, इंग्लिश में तो यू ऐसा सेम होता है. कोई मतलब जैसे रिस्पेक्ट में बोलोगे तो एक वर्ब को चेंज नहीं होता है. तो स्पेनिश में भी एक तुम बोलने के तरीका है और एक आप बोलने के दो तरीके होते हैं. लेकिन स्पेन में मेनली तुम से ऐसे बात करते, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से बनाया है. इतू एंड यू. तो जैसे मैं आप लोग को पूछूं, ¿Cómo estás? How are you? हाँ. और ¿Cómo estás? आप कैसे रिप्लाई करोगे? ¿Cómo estás? Estoy bien. I am good. O estoy mal. O just bien, muy bien. Bien, muy bien, है ना? ¿Cómo estás? कोई बोलना चाहोगे ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? कोई नहीं? ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ. तो आप लोग अच्छे से सुन लीजिए. अभी के लिए जो लिसनिंग जो है अच्छे से सुन लीजिए, जैसे कि मैं हर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ. जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कैसे लिखा है, ये तो देख गया. और हर वावल को प्रोनाउंस करना होता है. तो फिर दैट वे स्पेनिश इज इजी. लेकिन आप अच्छे से सुन लीजिए ताकि आप लोग को पता चले कि वर्ड्स को कैसे, वावल्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं स्पेनिश में. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Now, what is your name? What is your name को कैसे बोलते हैं? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Chelsea. जैसे मेरा नाम चेल्सी है, तो फिर me llamo Chelsea. ¿Cómo te llamas? Me llamo Chelsea. तो डबल एल है, ये आप लोग ने नोटिस किया यहाँ होगा. डबल एल जो है ये ला नहीं है स्पेनिश में. डबल एल जो है या करके प्रोनाउंस करता है. como te llamas. जैसे अगर इंग्लिश में स्पेल करोगे तो YAMAS हो जाएगा ऐसे. ¿Cómo te llamas? Me llamo Chelsea. मेरा नाम चेल्सी है. My name is Chelsea. Or what is your name? ¿Cómo te llamas? अब nice to meet you कैसे बोलते हैं स्पेनिश में? Mucho gusto. Mucho gusto. Nice to meet you. Mucho gusto. क्लासेस लग रही है, मतलब ऐसा है कि हम सब 20 वाले हैं. Oh, I request the participants to please mute themselves. All the participants, please mute yourself. Thank you, Ruchima. तो जैसे nice to meet you, mucho gusto. और आप बोलोगे same here, igualmente. I know this is a very long word, लेकिन आपको अगर एक लैंग्वेज सीखना है, स्पेनिश सीखना है, तो फिर बोलना पड़ेगा, है ना? igualmente. जैसे मैंने बताया था पहले भी कि हर वावल को प्रोनाउंस करते हैं स्पेनिश में. तो igualmente. ये जो यू है ये ऊ है.
तो igualmente. Mucho gusto. Igualmente. 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 अब आते हैं where are you from? आप कहाँ से हो, है ना? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? Soy de la India. Soy de la India. जैसे मैं किसी को पूछूं, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres? तो फिर जैसे कोई भोपाल से हो तो फिर बोलेंगे soy de भोपाल. soy de भोपाल. I am from भोपाल. जैसे soy de la India. ये जो ला क्यों आया यहाँ पे? I am from India, लेकिन ला इंडिया क्यों आया? तो ये एक आर्टिकल है. स्पेनिश में आर्टिकल्स जैसे यूज करते हैं. और कोई कंट्रीज, देयर आर अ फ्यू कंट्रीज वेयर दे कंसिडर दीज कंट्रीज एज फेमिनिन. तो फिर उसमें ला आता है. जैसे स्पेनिश में भी मैस्कुलिन फेमिनिन ये बहुत बड़ा चीज होता है. हर वर्ड जैसे हिंदी में भी है. तो मैं हिंदी में थोड़ा सा उसमें मिस्टेक करती हूँ, लेकिन एज अ लैंग्वेज आप बोल के जैसे अपने भाषा को इम्प्रूव करोगे, तो स्पेनिश में भी ये मैस्कुलिन फेमिनिन ये बहुत बड़ा चीज है. जैसे टेबल है, टेबल को बोलते हैं मेसा. MESA, मेसा. तो फिर टेबल जो है फेमिनिन है, तो फिर ला मेसा. और ये जो फोन है इसको बोलते हैं स्पेनिश में मोबिल. जैसे मोबाइल है ना, तो मोबिल. तो मोबिल जो है ये मैस्कुलिन है, तो फिर एल मोबिल ऐसा वाला. तो अभी के लिए आई थिंक इतना ठीक है. इतना डीपली नहीं जाते हैं, बस बेसिक्स में फोकस करते हैं. तो सोy de la India. Soy de la India. ¿De dónde eres? Soy de la India. आप स्पेनिश बोलते हो? तुम स्पेनिश बोलते हो? डू यू स्पीक स्पेनिश? ¿Hablas español? ¿Hablas español? तो जैसे एन के ऊपर ये एकदम ऐसा वेव टाइप का थोड़ा छोटा सा जो ये है, ये एन जो है ये एक एन से अलग सा एक लेटर है स्पेनिश में. दिस इज एन एडिशन टू द इंग्लिश लेटर ऑफ एन. तो उसमें एक एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं एनिए. एनिए ऐसे करके बोलते हैं. इसलिए जब हम अगर एक इसके साथ एक वर्ड को बोलना है, जैसे एस्पानियोल में आगे एस्पानियोल, जैसे एनिए एस्पानियोल. जैसे इंग्लिश में अगर आप बोलने लिखने की कोशिश करोगे तो NY आ जाएगा शायद. तो जैसे मैं आप लोग को पूछूं, ¿Hablas español? o ¿Habláis español? ¿Hablas español? Yo hablo, I speak English, Hindi, etc. etc. Hablo inglés, hindi, Manipuri, español, sí. Sí means yes in Spanish. Sí, sí, yes. So, ¿hablas español? Do you speak Spanish? Sí, yes. Hablo inglés, hindi, español, etc. etc. जो आप लोग लैंग्वेज आप बोलते हो. तो स्पेनिश में इंग्लिश को इंग्लिश नहीं बोलते, इंग्लिश बोलते हैं. इंग्लिश अपने भाषा में ऐसे ही बोलते हैं स्पेनिश में वो लोग, इंग्लिश. हिंदी को स्पेनिश में, हाँ स्पेनिश में ना एच जो लेटर है इसको प्रोनाउंस नहीं करते. इसको म्यूट कर दो आप. एच को कभी भी प्रोनाउंस नहीं करना, इसको म्यूट कर दो, साइलेंट कर दो. तभी मैंने बोला आब्लास, आब्लास है ना, हाब्लास नहीं बोला मैंने. हाब्लास कोई स्पेनिश में एच साउंड जो है वो नहीं है, बस लेटर यूज करते हैं वो लोग, लेकिन साउंड जो है वो नहीं है. और अगर लेटर को ये जैसे एच है इंग्लिश में, तो इसको स्पेनिश में कैसे बोलते हैं? आचे. ये जो एच जो है आचे, लेकिन इसको प्रोनाउंस नहीं करते. तो इसलिए hablas español है ना, सुनाई दिया? hablas विदाउट द एच. hablo इंग्लिश, हिंदी, español ऐसे. अब अगर आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलती, मैं स्पेनिश नहीं बोल सकती, तो फिर नो hablo, नो hablo, नो hablo. वेरी सिंपल. नो, बस नो डाल दो और वो वर्ब आ गया. hablar, the verb hablar is to speak. तो no hablo. ¿Hablas español? No hablo español.
अब आते हैं आई एम लर्निंग स्पेनिश। आई एम लर्निंग स्पेनिश, तो इसको कैसे बोलते हैं स्पेनिश में? एस्टोय aprendiendo español. Estoy aprendiendo español. Estoy aprendiendo español. Estoy, I am aprendiendo learning. हाँ, ये एक बहुत बड़ा सा लंबा सा वर्ड आ गया फिर से, लेकिन सीखना पड़ेगा, है ना? Estoy aprendiendo español. Aprendiendo. Aprendiendo, है ना? 4 syllables. अब आते हैं लास्ट, ग्रासियस। थैंक यू कैसे बोले स्पेनिश में? हाँ, बहुत लोग को जानने के हिंदी में क्या बोलते हैं? पीपल वांट टू नो ना, पीपल वांट टू नो हाउ टू से थैंक यू। जैसे धन्यवाद, शुक्रिया, ये सब बोलते हैं हिंदी में। ग्रासियस, ग्रासियस। और थैंक यू वेरी मच बोलेंगे तो मुचास ग्रासियस। जैसे muchas gracias, muchas gracias, thank you very much, और gracias, thank you, gracias, gracias, muchas gracias। अब you are welcome कैसे बोलेंगे? de nada, de nada, de nada, de nada। I am sorry कैसे बोलेंगे? lo siento, lo siento, lo siento, lo siento। अब लास्ट का पार्ट आ गया, farewell, las despedidas, las despedidas। फेयरवेल, जैसे फेयरवेल जब आप जाते हो तो क्या बोलते हो? जैसे हिंदी में तो बोलते हैं, हम इंग्लिश ही यूज करते हैं यहाँ पे, तो बाय, हाँ मैं चलती हूँ, बाय बाय, है ना? ऐसे बोलते हैं। तो स्पेनिश में कैसे बोलते हैं बाय? गुड बाय, आदियोस, आदियोस, आदियोस। और जस्ट लाइक वेरी कैजुअली आप बोल भी सकते हो चाओ, चाओ, चाओ चाओ, बाय बाय, ऐसे भी बोल सकते। nos vemos, nos vemos, see you, nos vemos, see you, hasta mañana, see you tomorrow, or it can also mean until tomorrow, because hasta in Spanish it means until, but if you have to translate, जैसे अगर English में translate करना हो तो it can mean see you tomorrow or until tomorrow, ऐसे। तो hasta mañana, mañana means tomorrow, mañana, tomorrow। तो see you tomorrow, hasta mañana, nos vemos, bye, see you, nos vemos mañana, ये भी बोल सकते हैं आप। hasta mañana, hasta, देखो H को साइलेंट, H हमेशा साइलेंट होना है, म्यूट कर देना इसको। hasta mañana, hasta luego, 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 hasta luego, hasta luego, see you later, है ना? फिर see you soon, hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto, chao, hasta pronto, adiós, hasta pronto। और फिर hasta siempre, जैसे farewell बोलेंगे ना, थोड़ा फॉर्मल वे में बोलेंगे। और see you always, siempre means always, तो hasta siempre, see you always, एकदम थोड़ा रोमांटिक वे में, है ना? see you always, hasta siempre, hasta siempre, है ना? और ये जो किसी को एक ऊपर भी यूज नहीं करना है, लास्ट वाला, जैसे मैंने लिख दिया hasta nunca, see you never again। अगर आप किसी को मिलना नहीं चाहे दोबारा तो फिर बोलेंगे hasta nunca, लेकिन आई होप कि ये किसी को यूज करने ना पड़े, है ना? hasta nunca। तो ये था स्पेनिश के बेसिक्स। इतने ही मैंने बनाया है क्योंकि दिस इज अ डेमो क्लास, तो इसमें ग्रीटिंग्स कवर्ड हुआ हमने, बेसिक कन्वर्सेशन, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, ये सब कवर्ड हुआ, और फिर फेयरवेल कवर हुआ। इतना ही मतलब डेमो क्लास में कवर कर पाया। जैसे अगर अल्फाबेट्स को भी आप मैं अगर सिखाते तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इतना ही है आज की क्लास के लिए। तो मुचास ग्रासियास, मुचास ग्रासियास, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यस, इनफैक्ट चेल्सी मैम, मैं आपको बोलना चाह रही थी कि मुचास ग्रासियस। इट वाज de nada, है ना? मुचास ग्रासियास बोला तो फिर मैंने बोल दिया
You're welcome. De nada. Yes, de nada. Yes. So it was wonderful session, ma'am. बहुत ही अच्छा, बहुत सारी everything we got to know. एक तो why should we learn Spanish and what are the job opportunities after learning Spanish और basics of the Spanish language. तो जो भी participants आज इस सेशन को अटेंड किए हैं, आई थिंक यू हैव गॉट द आइडिया कि क्लासेस कैसे रहेंगी. ये तो बहुत ही बेसिक था, फिर हम उसको और डेप्थ में जाएंगे. ऑल्दो दिस इज अ बिगिनर्स लेवल कोर्स जिसमें हमारी कोशिश है कि आप बेसिक ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज बोलना और थोड़ा बहुत लिखना सीख सकें. इंपॉर्टेंटली है कि स्पोकन पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट आई फील देन द रिटन पार्ट. कि अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो आप बोल पाएंगे अच्छे से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. फिर लिखना भी थोड़ा सा सीख पाएंगे. तो स्पोकन पार्ट पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, हालांकि थोड़ा बहुत हम रिटन भी सिखाएंगे. सो बेसिक जो भी लेवल कोर्स होता है, जहाँ कहीं से भी आप करेंगे, जो बेसिक लेवल का कोर्स होता है, इट विल बी एज कम्पेयर टू दैट लेवल. और मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ रुचि हाँ मैम जी कि जी जो हम जैसे कोर्स को डिजाइन किया गया है, तो कोर्स को ना, जैसे मैंने इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस वो एम्बेसी के ऑफिशियल इंस्टीट्यूट से मैंने किया है, कंप्लीट किया अपना जो स्पेनिश लैंग्वेज सिखा है वहाँ से. तो वी फॉलो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में भी कोर्स को जैसे डिजाइन किया गया, इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस जो मेन जो एम्बेसी के जो कोर्स फॉलो करते हैं उसी के हिसाब से हमने फॉलो किया है. थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा क्योंकि आवर में थोड़ा कम हो जाए या थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाए, उसमें थोड़ा सा हो जाएगा डिफरेंस. लेकिन इट्स द वी आर फॉलोइंग द ऑफिशियल जो एम्बेसी के जो है. यस यस. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट की जो एम्बेसी का स्टैंडर्ड कोर्स है वही हम फॉलो कर रहे हैं. दैट्स व्हाट मैम इज सेइंग. और वही फॉलो होगा. सो दैट इस कोर्स को करने के बाद आपको रवींद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट मिलेगी, विच इज अ यूजीसी एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. एट द सेम टाइम आप एम्बेसी पर जाकर भी अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी एग्जाम आप दे सकते हैं बेस्ड ऑन द कोर्स जो आपने यहाँ से किया है. सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन एवरी वे. वहां का भी एग्जाम दे सकते हैं और यहाँ की भी जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी विद दैट विल ऑल्सो बी यूजफुल. क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटीज ये कोर्स कराती हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट देती हैं. सो वी विल बी गिविंग आवर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट. और मैंने आपको फीस का बता ही दिया है. इट इज गोइंग टू बी 4,000 रुपीज फॉर 6 months. आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, 2,000 पहले 2,000 बाद में. सारे बैंक डिटेल्स आपको कहाँ डिपॉजिट करना है वो मैं आपको बताऊंगी. आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और आप एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म कर लेंगे जो भी स्टूडेंट्स हैं और मैडम के साथ. और उसके बाद वी विल बी कम्युनिकेटिंग थ्रू दैट व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस है सारी. सो ग्रासियस ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग. मैं आपको फिर से नंबर दे रही हूँ 7089111591. 7089111591. इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए जो लोग करना चाहते हैं. एंड इसी हफ्ते दिस वीक ओनली वी विल बी स्टार्टिंग द क्लासेस. मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी जब होगा. और most probably end of this week we will start the classes. So all the participants, thank you so much for joining. Or Chelsea ma'am, gracias for the wonderful session. Muchas gracias a todos. Thank you to everyone. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yeah, thank you so much. And ISECT group ke log, Rajesh ji, thank you so much for helping and supporting in every way. So gracias Rajesh ji also. Thank you. Thank you. Gracias Rajesh ji.